Hello students, welcome to another important and engaging sessions जहाँ पे हम लोग top 200 जो algebra questions हैं we are discussing those questions and this is the part number 3 of that videos I can say playlist and you have to follow the playlist if you want to solve all 200 questions and might be possible these questions will be crossing 200 also but as I have targeted as of now that 200 questions will be doing right. So this is the part number 3 and if you have missed the earlier parts you can find the link of that playlist also videos also in the description. So we have the first question of the day that we find the number of solutions for the given equation and this is the logarithm question. So log base 4 x minus 1 is equals to log base 2 x minus 3, right? So we can only equate the logs or the two quantities when they are of same nature or the same units, right? तो यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे बेस 4 एक काम करते हैं. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट 2 स्क्वायर 4, राइट? तो 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं एंड दिस इज log base 2 x minus 3, right? And if you know the property that log base b power m and a power n, you can write n upon m log base ba. This is important property and here we'll be using that property for the I can say base. So this is going to be 1 upon 2 log base 2 x minus 1 and this is log base 2 x minus 3, राइट? अब ये जो 2 है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस इज log base 2 x minus 1 और एक और प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसी का एक्सटेंशन है कि अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 2 है वो इसके सर पे भी जाके बैठ सकता है अगर उसका मन करेगा, ठीक है? तो अभी इसको इसके सर पे जाके बैठा देते हैं. तो log base 2 x minus 1 equals to log base 2 x minus 3 का होल स्क्वायर, right? Now we have the same log with the same basis, right? So I can eliminate these two. So I have x minus 2 equals to x minus 3 whole square, right? So this is quadratic equation, of course. So we have to find the values of x. So I'm using this equation or you solving this equation here. X minus 3 whole square equals to x minus 1, right? So this is x square plus 9 minus 6x equals to x minus 1. So from here x square minus 7x plus 10 equals to 0. So this is x minus 5 and x minus 2. So this is going to be x equals to 2 and 5. So most of the students will be saying that there are two possible solutions. But remember, whenever we have the question of log or modulus or something like that, we have to replug the values in the given question so that कोई भी कंडीशन ऐसा तो नहीं है जो मेरा सॉल्यूशन उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है. तो लॉग के अंदर एक खास बात होती है कि जो उसका डोमेन होता है, डोमेन बोले तो ये जो नंबर्स हैं x माइनस 1 ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, ऑलवेज 0 से बड़े होंगे. सो इफ आई पुट x इक्वल्स टू 2, अगर मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 पुट करता हूँ इन क्वेश्चन, तो जैसे ही आप इसको क्वेश्चन में पुट करोगे तो यू कैन सी सर ये तो 2 माइनस 1 दैट इज राइट. हाँ तो 2 माइनस 1 हो जाएगा ना. आई थिंक बोथ आर सॉल्यूशन पॉसिबल हैं. ये भी वही, अगर आप 2 लगाओगे यहाँ पे तो कोई भी कंडीशन वैलिडेट. ओके हाँ, अगर आप यहाँ पे लगाओगे ना 2, देखो यहाँ पे अगर हम 2 लगाएंगे, अगर आप x इक्वल्स टू 2 रखोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा. तो नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि वो लॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा. लॉग ऑलवेज एग्जिस्ट. अगर आप लॉग की थोड़ी सी बेसिक जानकारी को समझना चाहते हैं तो वी हैव लॉग बेस b एंड देन a. तो b should be greater than 0 and base cannot be 1, and similarly this argument or I can say domain is always greater than 0. Always greater than 0, then only logs you can define the log, right? So this is reaching our condition. So x equals to 5 is the only solution, right? So answer will be that is 1. So hopefully it is clear. आपको ये बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए कि whenever we have modulus question, log question, we have to replug the solution in the given question so that कोई भी condition breach ना हो रही हो, right? चलिए, we have the next question. This is from quadratic equation and it is saying that I'll be using root, I can say marker, right? So the least positive value of a for which the given equation has real root, right? So we have twice of x square
plus a minus 10 of x and plus 33 upon 2 minus 2a equals to 0, right? So this is c, this is b, and of course this is a, right? So for the real root we have the situation or we have the condition that for the real roots की कहानी क्या होती है, d should be greater than equals to 0. आपका d नेगेटिव नहीं होना चाहिए. अगर d बोलते हो डिस्क्रिमिनेंट, राइट, तो अगर वो नेगेटिव हो गया तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, नॉन रियल रूट्स होते हैं, बट इट इज सेइंग दैट इट हैज टू बी अ रियल रूट, राइट? तो d हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. दैट्स इट. तो d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, right? तो b square would be a minus 10 का whole square is greater than equals to 4 times of, ये इसको इधर ही लिखते हैं, माइनस का 4, a is actually 2 and this is 2, c is actually complete. So 33, अब इसका LCM ले लेते हैं 2, तो माइनस का 4a हो जाएगा ऐसा. It should be greater than equals to 0. I believe it is clear, right? तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का 100 माइनस 20a एंड माइनस का 132, भाई इसको 132 प्लस का 16a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. आई बिलीव इट इज क्लियर. सो दिस इज गोइंग टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन a स्क्वायर एंड माइनस का 4a माइनस का 32 इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो 32 के फैक्टर जो 4 आए तो डेफिनेटली यू कैन से this can be a square minus 8a plus 4a minus 32 greater than equals to 0. So this is going to be a minus 4 or a minus 8 and a plus 4, so greater than equals to 0, right? So this is the inequality, and if you know that how to solve the inequality, this is a equals to minus 4, this is a equals to 8, and we want positive plus minus plus. So we have to find the least positive a for which the equation. अब ये सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछता है, तो सबसे कम जो वैल्यू है वो 8 हो सकती है. अगर वो इक्वल नहीं होता यहाँ पर तो आई कुड हैव मार्क टाइम, बट इट इज सेइंग लीस्ट पॉजिटिव है और इक्वलिटी लगी हुई है, तो आई बी मार्किंग 8, राइट? तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 8, राइट? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8. तो आई बिलीव इट इज क्लियर दैट इज a का जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी 8. आई होप इट इज क्लियर. And this is a real root condition. Hopefully it is clear. Moving to the next question. The sum of the cubes. ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है. यहाँ पे बच्चों x की पावर 4 देख के शायद से वो डिसबैलेंस अपने ब्रेन को कर सकते हैं, बट थोड़ा सा अगर हम इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे जो 1 है ना, ये आपको हिंट देने की कोशिश करता है कि यहाँ पे जो x के एक हिट एंड ट्रायल रूट मारेंगे, तो अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट करता हूँ तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा? 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1. सो दिस इज गोइंग टू बी 3 4 5, ये हो जाएगा. मतलब x माइनस 1 इज अ फैक्टर. वेरी गुड. सिमिलरली अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे, x इक्वल्स टू माइनस 1, जो भी यहाँ पे नंबर है ना इसके फैक्टर प्लस 1 और माइनस 1, ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करने की, तो दोनों पे चेक करना चाहिए. माइनस 1 रखने पर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस का 3, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3 प्लस का 1. सो दिस इज 3 4 5 अगेन. सो दिस इज ऑल्सो x प्लस 1 इज अ फैक्टर. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसके दो रूट्स तो हमको वैसे पता चल गया. वी हैव टू रूट्स x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1. सो दिस कैन बी रिटन इन द फैक्टर फॉर्म ऑल्सो, राइट? So I can write that x minus 1 and x plus 1 and into some number so that this expression will be equal, right? तो आपको दो वैल्यू से पता चलती है. हमको तीसरा वैल्यू कैसे निकालना है, मतलब अब आगे के रूट्स कैसे निकलेंगे? तो अगर मुझे आगे के रूट्स निकालने हैं तो मुझे इस एक्सप्रेशन में जो हमारे पास फैक्टर निकले इसको डिवाइड करना पड़ेगा. तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे करने से अच्छा है काम ना करें भाई. आपके पास ये तो आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1, राइट? ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1. अभी आपके पास x स्क्वायर माइनस 1 है एंड आई वांट टू मेक x की पावर 4. इस एक्सप्रेशन को वापस बनाना होता है. अगर आपने थोड़ा सा भी ये तरीका सीखा है तो आपके लिए ईजी है, वरना जस्ट ट्राई टू कैच इट. मैं क्या करने वाला हूँ? सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आपके पास x स्क्वायर माइनस 1 है एंड फ्रॉम दिस आई वांट टू मेक दिस कंप्लीट इक्वेशन अगेन, राइट? सो अगर मुझे बनाना है तो यहाँ पे x की पावर 4 करने के लिए मुझे x स्क्वायर करना पड़ेगा. दिस इज x की पावर 4 माइनस का x स्क्वायर
but here we have x cube also, right? Here we have x cube also, and उसके लिए हमको x cube के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस का 3x क्यूब है, तो यहाँ पे माइनस 3x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो दिस इज माइनस 3x क्यूब एंड वी हैव प्लस का 3x, राइट? तो अभी आपके पास एक्स स्क्वायर और बचा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कर लेता हूँ, बिकॉज आई हैव 3 ब्रैकेट, सो दिस इज एक्स की पावर 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, बट आपको 2x स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पे माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो दिस इज माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1. तो क्या ये इक्वेशन वापस बन गई? देखो, x की पावर 4 माइनस का 2x की स्क्वायर माइनस 3x क्यूब एंड प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0. दैट्स नाइस. इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये दो फैक्टर तो मिल ही गए, और बाकी जो फैक्टर मिलेंगे वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 से मिलेंगे, राइट? मैं इसको थोड़ा नए पेज पे लिखता हूँ. दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1. तो आई होप इट इज क्लियर, राइट? ये इक्वल्स टू 0. अब आपसे बोलता है द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ ऑल द रूट्स, राइट? तो इसके 4 रूट्स होने वाले हैं भाई. इसके रूट्स तो आपको पता चल गया, मान लो x इक्वल्स टू एक 1 आएगा, एक माइनस, 2 रूट तो पता चल गए. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स को अल्फा बीटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ से फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट इज माइनस का b अपॉन a3 हो जाएगा, और अल्फा बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा दैट इज 1 माइनस का 1. नाउ वी हैव टू फाइंड द क्यूब्स. तो अगर मुझे क्यूब करना अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस का 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा. तो फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड दिस वैल्यू. तो दिस इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 3 का क्यूब, राइट? एंड लेट इट बी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3. दिस इज माइनस 1 एंड दिस इज अगेन 3. सो आई कैन से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दिस इज 27 और ये हो जाएगा माइनस विल मेक इट पॉजिटिव, तो प्लस 9 दैट इज 36 हो जाएगा. तो ये 36 आ जाएगा. अब क्वेश्चन देखो, सिंपल सा है कि इसके रूट्स तो आपको पता चल गए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मिला के 36, और जो 2 रूट्स थे माइनस 1 का प्लस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का क्यूब, तो ये तो 0 हो जाएगा, मिला के एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो फाइनल आंसर वुड बी 36. So that was very nicely framed question, and the answer of this question is going to be 36. I believe it is clear. If you have any doubt, you can leave your comment or you can just re-watch it. ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने यहाँ पे किया है, और मैंने पहले भी सिखा रखा है, तो आप कोशिश करा करो इनको सीखने की. ये कुछ नई बातें हैं जो आपको शायद से इस तरह का क्वेश्चन पहले भी कैट में पूछा गया है, और इस तरह के क्वेश्चंस को आपको आई कैन से पैटर्न समझना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज सेइंग दैट वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू अल्फा, एंड दिस इज इसका वैल्यू निकालना है. तो अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 1 को देखते हैं तो ये तो 1 ही आएगा, बिल्कुल सही बात है. स्क्वायर रूट ऑफ 2 को देखेंगे तो ये 1.414 होता है, लेकिन अगर मुझे इसका इंटीजर पार्ट लेना तो ये 1 होगा. स्क्वायर रूट ऑफ 3 को देखेंगे तो ये हो जाएगा 1.732, लेकिन इसका इंटीजर पार्ट देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है. तो इंटीजर चेंज कहाँ पे होगा? चेंज हो जाएगा 4 पे. 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो यहाँ से आंसर आपको 2 मिलेगा. 5 का भी 2 मिलेगा, 6 का भी 2 मिलेगा इंटीजर, भाई इसका इंटीजर पार्ट जो मिलेगा 6 का भी 2 मिलेगा, 7 का भी 2 मिलेगा. तो ये आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए, कहाँ तक आपको 2 मिलेगा. 8 का भी 2 मिलेगा इंटीजर पार्ट, रूट 8 का भी, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2. बट 9 पे आते ही ये चेंज हो जाएगा, दैट इज वो 3 हो जाएगा. तो पॉइंट इज दैट कि आपको परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने हैं, परफेक्ट स्क्वायर, राइट? तो पहला परफेक्ट स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे 11 से थोड़ा कम है, राइट? 11 से 11 पहुँचना नहीं है, वो लास्ट में 11 स्क्वायर, ठीक है? तो ये वैल्यू होती है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 और 121. अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है. अगर मैं 1 की बात करता हूँ, 1 कितने टाइम्स आएगा? तो 1 विल बी कमिंग डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस 3 का है, तो यू कैन सी कि 1 जो है वो 3 टाइम्स अपीयर होगा. अब जो डिफरेंस है वो 5 का है, दैट इज फॉर 2, क्योंकि भाई 4 से ऊपर सब कुछ वैल्यू 2 आएगी. अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 2 विल बी अकरिंग 5 टाइम्स. 5 कैन से, so 1 into 3
plus 2 into 5. Then 7. 3 will be occurring 7 times. Then 4 will be occurring 9 times. Then 5 will be occurring 11 times. 6 will be occurring 13 times. Very nice. 7 will be occurring 15 times. Then 8 will be occurring 17 times. And 9 will be occurring 19 times. Plus 10 will be occurring. 10 will be occurring 21 times. क्योंकि 120 पे जाना आपको 120 पे जाना है, 120 पे जाना है, राइट। क्योंकि 121 पे आते तो 11 हो जाएगा। तो 100 में आपको 10 मिलेगा, 11 में दैट इज 100 में 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 12 और 9 21, ठीक है। तो आपको 10 इंटू 21 मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। आप कुछ नहीं करना, इनको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करना तो मुश्किल टास्क नहीं है, हालांकि थोड़ा आपको कैलकुलेटिव लग सकता है, तो बट डोंट वरी। दिस इज 3 एंड दिस इज 10 एंड दिस इज 21, दिस इज 36, दिस इज 55, दिस इज 78 एंड दिस इज 105, 136 एंड दिस इज 171 एंड दिस इज 210। तो ये मैनुअली ही ऐड कर सकते हैं। कोई पैटर्न तो आपको आई थिंक नहीं बनता हुआ दिखाई देगा, या फिर एक पैटर्न जो बनेगा वो 2 आई कैन से 2 सक्सेसिव एपीज आपको लगेगा, 1 2 3 3 5 7 9, राइट। एक वो तरीका है। तो आपके पास जो मन है आप ऐसे कर सकते हैं और उसके बाद आप इनको ऐड कर सकते हैं, राइट। ये भी बहुत कमाल का क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इसमें, एक तो तरीका है कि आप इसको बेसिक, अगर मैं इसके मॉडुलस पे काम करना चाहता हूँ, हमको ये पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर जो होता है वो मोड एक्स का स्क्वायर ही होता है। ये दोनों बातें इक्विवेलेंट हैं, हाँ, दीज आर इक्विवेलेंट। तो अगर मैं इसी बात को ऐसे लिख लेता हूँ, दैट इज मोड एक्स का स्क्वायर माइनस 3 मोड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये सीधा सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके रूट्स बन जाएंगे मोड एक्स माइनस 2 और मोड x माइनस 1, राइट, बिल्कुल इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मोड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी मोड x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2, और यहाँ से मोड x की वैल्यू 1 आएगी, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1, राइट। अब ये सवाल आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपके पास x की वैल्यू प्लस माइनस 2 है, ठीक है। तो नाउ यू वांट टू से कि अगर आपके पास मॉडुलस ऑफ x है, ठीक है भाई, मॉडुलस ऑफ x है, तो इसके पास दो तरीके हैं ओपन होने के भाई। या तो x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और x अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिव x के साथ ओपन होगा, और यहाँ पर ये पॉजिटिव x के साथ में ओपन होगा, ठीक है। तो बट हमने तो ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन निकाल ही लिया है कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। यहाँ पे आप रख के देखेंगे प्लस माइनस 2, और तो आई थिंक इसका जो आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 4 सॉल्यूशन इसके पॉसिबल है, इसके 4 सॉल्यूशन पॉसिबल है। वरना दूसरा तरीका क्या है, अगर इसको दूसरे तरीके से आप करना चाहते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 मोड एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसमें केस 1 ले लेते हैं, दैट एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है, और केस 2 बनेगा इसमें एक्स अगर लेस देन 0, राइट। तो इसमें x पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 1 और 2, तो बोथ आर पॉसिबल ना भाई। x की वैल्यू 1 और 2, x की वैल्यू 0 से बड़े हैं दोनों। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा x प्लस 1 और x plus 2 equals to 0. So again I can say x equals to minus 1 and minus 2 both are less than 0. So both are valid solutions actually. This is also valid, this is also valid. So definitely I can say that we have 4 number of solutions. Hopefully it is clear, right? We have another beautiful question that the value of a for which the root of the is twice as large, right? So again this is of a square minus 5 times of a plus 3 of x square plus 3 a minus 1 x plus 2 equals to 0. So suppose it has two roots alpha and beta. So it is saying that one root should be twice the other root, right? Alpha should be twice the beta. So we have to find the value of the a, right? So
So if I'm saying sum of root alpha plus beta, so this is minus, that is 3a minus 1 upon a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 3, एंड ये आपको माइनस यहाँ पे लगाना पड़ेगा एडिशनल, राइट, ये माइनस का लगाना पड़ेगा. सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा, राइट. बट अल्फा इज ट्वाइस ऑफ बीटा, तो आई कैन राइट 3 टाइम्स ऑफ बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3a माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 3. होपफुली इट इज क्लियर, राइट. तो आई कैन राइट 3 बीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 3 इक्वल्स टू 1 माइनस का 3a. वेरी ब्यूटीफुल, राइट. एंड सिमिलरली जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करेंगे, इफ आई टॉक अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ रूट, राइट, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c अपॉन a, दैट इज 2 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 3, राइट. तो अल्फा इज अगेन ट्वाइस ऑफ बीटा, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ बीटा स्क्वायर into a square minus 5a plus 3 equals to 2, right. So I can say अगर मैं इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, दिस इज ट्वाइस ऑफ बीटा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 3 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 2. तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बीटा से एक बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 से 2 भी चला जाएगा. So I can say 3 upon beta should be equals to 1 minus 3a. बट पंगा ये है कि अभी बीटा बचा हुआ है और आपको a का वैल्यू निकालना है, राइट. आपको a का वैल्यू निकालना है, ठीक है. तो ये बहुत तो अब एक तरीका हमारे पास जो बचता है, अगर मैं यहाँ से इसको रिवर्स कर देता हूँ, दैट इज 1 अपॉन 3 बीटा, तो ये वैल्यू a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 3 अपॉन दैट इज आई कैन मल्टीप्लाई नेगेटिव, तो आई कैन राइट दैट इज 1 माइनस 3a, ऐसा लिख सकते हैं ऑफकोर्स. तो अगर आपने ये लिख दिया तो 1 अपॉन बीटा की वैल्यू आपको मिलेगी, और आप उसको, राइट, अब आपके पास ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके मेरा थोड़ा सा हिसाब किताब बन सकता है, दैट इज 1 अपॉन 3 बीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर 3 बीटा, राइट. a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 3 अपॉन 1 माइनस 3a, राइट. और यहाँ पर 3 अपॉन बीटा की वैल्यू है 1 माइनस 3a, राइट. अच्छा, तो यहाँ से अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या यहाँ से 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकाल दो, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 3 अपॉन 1 माइनस 3a. तो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो 1 अपॉन बीटा की, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ये पूरा का पूरा वैल्यू 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू a स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 3 अपॉन 1 माइनस 3a, और ये भी इधर आके 1 माइनस 3a. नाउ आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दैट, राइट. तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 3 इक्वल्स टू 1 माइनस 3a का होल स्क्वायर. सो दिस इज 1 प्लस 9a स्क्वायर माइनस का 6a, राइट, 6a. तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस का 45a प्लस का 27. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. बहुत प्यारा क्वेश्चन इन्होंने बनाया था बेसिकली. तो ये हो जाएगा माइनस का 39a, और ये 27 उधर आके माइनस का 26 हो जाएगा. तो a की वैल्यू आएगी माइनस का 26 अपॉन माइनस का 39, दैट इज 2/3. सो 2/3 इसका राइट आंसर है. काफ़ी घुमा के इन्होंने पूछा हुआ है, तो a का जो वैल्यू आएगा दैट इज 2/3. सो आई कैन सी द ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, राइट. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. अगर आपके पास और कोई सोल्यूशन है तो प्लीज़ डू लेट मी नो. बट फिलहाल मैं लाइव क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तो हो सकता है कि एक आध स्टेप जो अच्छे वाले हैं वो मिस भी हो सकते हैं, बट आई बिलीव कि आपको ये प्रोसेस करना पड़ता है, राइट. आज की वीडियो में इतना ही करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड वी हैव टू जस्ट कंप्लीट 200 क्वेश्चंस फॉर द अलजेब्रा. एंड बाकी जो टॉपिक्स हैं उनके लिए भी मैं वीडियो रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ. तो यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग क्वांटिप्रेप 99 इफ यू आर टारगेटिंग 99. So see you in the next video. Till then, bye. Take care and please do subscribe Quantprep 99.